Hello friends, my name is Lokesh Solanki and welcome to this beautiful such channel Physics Lover. So today we are going to start our new journey. Class 10th CBSE के हम पार्ट 2 की बात करेंगे. In this term 2 we will discuss the two chapters. One is electricity, then another is the magnetic effect of electric current. So, from today we are going to start our new topic electricity. So, there is one question in our mind, what is electricity? We generally know that the electricity is the source of energy which is used to run the appliances, and they are used in many ways. We can use the electricity to run the refrigerator, fans, coolers and so many other devices, mobile phones, because if we want to charge a mobile phone we require electricity. But what is electricity? So there are generally two types of electricity. यहाँ पर क्या होती है, जनरली दो टाइप से इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड किया गया है. One is a static electricity, another is the current electricity. But our main focus in this chapter is the current electricity. So चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, in which we will discuss the charge. What is the charge? When the charge is moving, then what happened? क्या होता है उस कंडीशन में? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. So generally electricity is divided into two parts. One is the static electricity. Static electricity. What is the static electricity? Static means rest. Static means हम क्या कह सकते हैं, rest. And electricity means हम कह सकते हैं charge. So when the charge is at rest, then we will talk about the static electricity. जब चार्ज क्या होता है बेटा, रेस्ट पर होता है. When the charge is at rest, charge is at rest, then we will talk about the static electricity. Now the second is the current electricity. Current electricity. What is the current electricity? Means current means motion. हम कह सकते हैं motion. Electricity is again charge. Charge is in motion. Charge is in motion. तो बेटा जब चार्ज क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, किसमें, कंडक्टर में, किसी सर्किट में, देन वी कैन से दैट देयर इज इलेक्ट्रिसिटी. तब हम कहेंगे कि उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो हो रहा है. ओके, सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस द चार्ज इज एट रेस्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज इज इन मोशन. बट सर आप ये बताइए, व्हाट इज द चार्ज? चार्ज क्या है, ये चार्ज क्या होता है? ओके, तो हम समझते हैं चार्ज को. देखो बेटा, हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक बॉडी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वर्क करता है. जैसे आपने कॉम लिया, कंघी ली और उसे नॉर्मली एक पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे, सो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम. उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो पेपर का जो पीस है, टुकड़ा है, वो वहीं रहेगा. but when that comb is rubbed with the dry hairs, in this condition it acquires a property to attract that piece of paper. उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है जो क्या करती है, उस पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींच लेती है. उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो हम बात करते हैं चार्ज क्या है. तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. It is the property of matter. So it is the property of the matter
When it is placed in an electric field, जो चार्ज है आपने अगर उसे कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, then it will experiences a type of force and that is the charge. ये चार्ज होता है कि वो क्या करता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो it experiences a type of force. वो हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स. Okay, so that is a charge. It is a property. It is generally a property. So it is the SI unit of charge. इसकी SI यूनिट की हम बात करें तो ये जो होती है बेटा, ये होती है कॉलम. क्या होती है? कॉलम. कॉलम इसलिए क्योंकि it is given by the बेंजामिन फ्रैंकलिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. One is a positive charge and other is the negative charge. We will discuss later. तो ये होता है कॉलम. So यहाँ पर जो वन कॉलम होगा वो माइक्रो कॉलम, वन माइक्रो कॉलम इज 10 to the power minus 6 कॉलम and 1 milli column is equal to 10 to the power minus 3 कॉलम. जो मिली कॉलम होता है -3 कॉलम के इक्वल होता है एंड माइक्रो कॉलम इज इक्वल टू 10 to the power -6 कॉलम. Okay, so that is the unit of charge. So write down in a proper way because आपका जो term 2 एग्जाम है उसमें theoretical part आएगा, not MCQs. So read, write carefully. लिख लीजिए इसे. Okay, अब हम बात करते हैं properties of charges. कि क्या क्या properties होती है, किसने क्या दिया था, क्यों ऐसा क्यों होता है. So let us discuss about properties of charges. Properties of charge. So the first property of charge is the like charge. पहला, there are two types of charges in nature. Two types of charges. One is positive charge and negative charge. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. सो हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. वी हैव अ वन ग्लास रॉड. हमारे पास क्या है, एक ग्लास रॉड है. ठीक है, इट इज द ग्लास रॉड. और ये है हमारा सिल्क क्लॉथ. ये कपड़ा है किसका, सिल्क का, सिल्क क्लॉथ. So, what is the positive and negative charge? तो जनरली a body is a neutral body. एक बॉडी जो होती है ना वो क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी होती है. बट सर हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे कहते हैं. पॉजिटिव मीन्स यहां से अगर नेगेटिव चार्ज यहां चले जाए, जब नेगेटिव चार्ज की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, कम हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ये बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है. और नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर गए हैं तो ये बॉडी में आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी एंड नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी. मींस व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, then the glass rod acquires a positive charge and the silk cloth acquires the negative charge. Similarly, when the ebonite rod is rubbed with a woolen cloth, so the ebonite rod acquires a negative charges and the woolen cloth acquires the positive charges. Okay, so दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. सेकंड, like charges repel each other and unlike charges attract each other. ओके, मीन्स अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे. And two negative charge does not attract each other, but one negative and positive charge attract each other. मीन्स मैं क्या ले रहा हूँ, एक तरफ ले रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ मैं ले रहा हूँ नेगेटिव चार्ज. सो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं
और 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल, इनके बीच क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ये भी क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। Okay, so there are 2 types of charges. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. That is the 2 properties. अब हम next बात करते हैं third property of charge, that is the additive property of charge. कौन सी property बेटा, additive property of charge, ठीक है। third additive property of charge means charge can be easily added. चार्ज क्या कर सकते हैं हम, चार्जेस को इजीली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, वी कैन इजीली ऐड द अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन अ सिस्टम। कि हमें एक बॉडी दे दी है, हमें कहा इसमें 5 कॉलम चार्ज है, -3 कॉलम चार्ज है, +2 कॉलम चार्ज है और -1 कॉलम चार्ज है। एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस बॉडी, total charge. So we can generally add, तो हम क्या कर सकते हैं, total charge Q is equal to +5 -3 +2 -1, 7 -4 +3 column of charge। तो इस बॉडी के पास पॉजिटिव 3 column of charge हैं, +3 column of charge in this particular body। ओके, अब हम बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, बिकॉज इट इज आस्क्ड इन मैनी टाइम्स। ये क्या कहती है कि द टोटल चार्ज of the system is integer multiple of charge on electron। कि जो टोटल चार्ज होगा, इट इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स total charge is equal to plus minus me, plus minus me। ओके, जहां पर Q क्या है, टोटल चार्ज है, M means the number of electrons, E charge on electron। okay, so that is the quantization of charge। the total charge of the system is integer multiple of charge on electron। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।